Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we will continue your last lecture, which is nothing but the circuit analysis, and in which we have discussed about the Kirchhoff's law, and also you know very well there are two laws which is given by Kirchhoff's, which is also known as Kirchhoff's law of any circuit, in which we have discussed about the first law, or which is also known as Kirchhoff's current law, and also known as in short KCL, and also known as junction law, because it's based on the current and based on the junction point. Okay, according to this, the algebraic sum of electric currents meeting at a junction, at any junction of any circuit, is always equal to 0. Okay, so in now after this we will discuss second law. Okay, Kirchhoff's second law, and the conclusion of this first law is based on the conservation of the electric charge. Remember this point also. Also many times in exams asked that Kirchhoff's first law based on what conservation law. Okay, and according to this we can say that Kirchhoff's first law based on the conservation of electric charge. So now we will continue this. Okay, so now we write here this is second law. Second law, Kirchhoff's voltage law or Mesh law. Okay, now I think there is a new word, mesh. Mesh means closed loop. Okay, closed loop close any closed part of the circuit. Okay, mesh is nothing but the closed part of any electrical circuit. Okay, so according to this law, the algebraic sum of potential differences, the algebraic sum of potential differences across the different elements, different circuit elements of a closed circuit
or mass is always equals to zero. The algebraic sum of potential differences across the different circuit elements of a closed circuit or mass, which is also known as a closed part of a circuit, is always equals to zero. Same as the first law. In first law we have stated that that the algebraic sum of the electric currents at a junction in an electric circuit will be also equals to zero, and also here the potential difference across the different circuit elements in a closed circuit or mass is always equal to zero. And here the meaning of the different circuit elements means that for electric potential difference across the resistance, across the capacitance, capacitor, across the बैटरी, अक्रॉस द सेल. तो ये जब जो भी आपके सर्किट एलिमेंट्स हो, आपके जो सर्किट में आपके लगे होंगे, उन सब के अक्रॉस आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा आपको उसे यहाँ पर कंसिडर करना है. ठीक है, देखिए इस कंडीशन में आपका जो साइन कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसा मैंने जंक्शन रूल में बताया था, आपको वहाँ पर भी याद रखना है. यदि हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस आपने देखा होगा कि हमने अभी यहाँ पर क्या किया था कि जो जंक्शन की ओर वाली करंट थी उसे पॉजिटिव लिया था, और जंक्शन से दूर वाली करंट थी वो हमने क्या किया था, निगेटिव लिया था, या आप इसके जस्ट अपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे. पहले मैथमेटिकली लिखते हैं और फिर एक एप्लीकेशन, एक एग्जाम्पल लेकर इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा. और फिर उसी की हेल्प से हम ये देखेंगे कि ये जो लॉ हमने यहाँ पर दिया है इसका ये कह सकते हैं कि इसका प्रूफ क्या है. ठीक है ना, कि ये सही है या नहीं है, किस लॉ पर ये से ये रिलेटेड है, किस थ्योरी से ये आपको मिला है कंजर्वेशन, जो आपका सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स है, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, या मेस लॉ है, या इसे इन शॉर्ट में KVL भी बोल दिया जाता है. इन इंजीनियरिंग दीज नेम्स वेरी वेरी फेमस, KCL एंड KVL. ठीक है ना. तो मैथमेटिकली वी कैन से दैट हेयर सिग्मा V इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट EMF. ओके, क्लियर है यहाँ तक. चलिए अब मैं यहाँ पर एक कंसीडर करूँगा एक सर्किट आपका. सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है लाइक दिस. ये आपकी एक बैटरी हो गई, और ये यहाँ पर आपने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, और इस बैटरी का आपका अपना एक EMF है, सपोज कर दीजिए E1. अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो करंट फ्लो करता है वो आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है. सपोज करिए यहाँ पर एक अनादर रेजिस्टेंस है आपका, सपोज कर दीजिए ये आपका क्या है, R3 है, और एक अनादर रेजिस्टेंस और ले लीजिए, सपोज करिए ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका R2 है, या इसे ऐसा करिए कि R3 है आपका. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दीजिए इसमें. सपोज करिए कि यहाँ पर जो बैटरी है इसका EMF आपका E2 है और इसका रेजिस्टेंस आपका R2 है, और ये लाइक दिस आपके कनेक्टेड है. अब यहाँ पर देखिए टू बैटरी यानी कि टू सोर्सेज काम कर रही है. तो आप को सबसे पहले करना क्या है कि आपको अलग अलग बैटरी पर
अलग अलग बैटरी को कंसीडर करना है और उनके इफेक्ट को यहाँ पर शो करना है और फिर उसे कंबाइन करके हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आप कंसीडरेशन करोगे अलग अलग बैटरी को सेपरेटली कंसीडर करके, तो उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा शायद वो आपका रॉन्ग हो सकता है। तो जब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो यदि कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो डायरेक्शन को कंसीडर करने में, तो वो यहाँ से आपके मैथमेटिकली आपका शो हो जाएगा। तो वहाँ पर हम बता देंगे कि इसकी डायरेक्शन ये ना होगा, जस्ट अपोजिट होगी। देखिए कैसे, अब 2 बैटरीज आपने यहाँ पर कनेक्ट की तो आपको क्लियर है कि दोनों के EMF डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों के EMF डिफरेंट्स है, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि एक बैटरी के कारण दूसरी बैटरी क्या होगी, चार्ज भी हो सकती है। क्लियर है ना, आई बात ना। चलिए तो सपोज़ करिए, पहले कंसीडर करते हैं सेपरेटली E1 बैटरी को। तो यहाँ से आपकी करंट सपोज़ करिए कितनी चली, I1। अब ये करंट आपकी यहाँ तक पहुँचेगी I1। क्लियर है ना। आप सपोज़ करिए E2 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से भी आपकी एक करंट चलेगी और ये यहाँ तक पहुँचेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक जंक्शन मिलेगा। इस जंक्शन से क्या होगा, दोनों करंट कंबाइन होगी, कंबाइन होकर कहाँ जाएगी, यहाँ पर I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ठीक है ना। इस जंक्शन से यहाँ पर I1 प्लस I2 जाएगी। देखिए मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, शायद इस बैटरी का कुछ करंट इधर भी लीकेज कर जाए। क्लियर है ना। तो वो मैथमेटिकली आपका ड्राइव हो जाएगा कि हाँ कुछ ऐसा है या नहीं है। तो आपको सिर्फ अभी इतना ही कंसिडर करना है। अब यहाँ से ये करंट यहाँ से पास होकर आएगा तो यहाँ पर अगेन एक जंक्शन है। तो कंजर्वेशन लॉ आपका होल्ड होना है कि जितना करंट यहाँ पर आया है इतने ही जंक्शन से बाहर निकलेगा। और सिंपली बात ये है कि यहाँ से जो इससे चार्ज आया था वो I1 करंट की फॉर्म में आया था, तो ये कितना करंट लेगा, I1 ही लेगा, क्योंकि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। तो जितना करंट इसने दिया था इतना करंट इसके पास क्या होगा, वापस जाएगा, और इसका करंट इसके पास वापस जाएगा। ये आपने मेंशन कर लिया। हमने अभी मेंशन किया है कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो यदि कुछ जस्ट अपोजिट हुआ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पर शो हो जाएगी। यदि आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखी है यहाँ पर और सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और यदि आपने जस्ट अपोजिट कंसीडर कर लिया है तो वहाँ पर निगेटिव साइन शो हो जाएगा। दैट मीन्स आपने जो यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग लेकर सोचा था वो आप जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका एक E1 सोर्स ही है, एक E2 सोर्स ही है। देखिए पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी हेल्प से इसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपको जब ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे, ये लो आपको अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हमें देखिए क्या होगा कि जब आप बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या होगा, देखिए सपोज़ करिए कि आपकी ये बैटरी है और ये इसका EMF है प्लस माइनस यहाँ पर हुआ। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, सपोज़ कर लीजिए। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, सपोज़ करिए आपका जो पाथ है वो ये D है, आप इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो फाइनल पॉइंट आपका होगा VB, इनिशियल पॉइंट आपका क्या होगा, A। तो आपने क्या किया, लोअर पोटेंशियल में से क्या किया, हायर पोटेंशियल को माइनस किया। क्या किया, लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल को माइनस किया। तो आपको लिखना होगा -E। क्या लिखना होगा, -E, क्योंकि आपको पता है कि E की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, ये होती है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्लियर है ना। तो यदि आपका कुछ ऐसा केस है तो आपको लिखना है -E। अब सिंपली हम बात करेंगे अगेन कि यदि आप क्या करते हैं कि आप सपोज़ करिए कि यही है आपका सर्किट, ये आपने बैटरी कनेक्ट की, ये आपका पॉइंट B, ये आपका पॉइंट A, इसका EMF आपका E है, और आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए ज़रा, तो क्या होना है इस केस में, तो आप जो है लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। क्लियर है ना। और ये आपका हायर माइनस क्या हुआ, लोअर, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, +E के। सिंपली याद रखिए। थर्ड केस क्या है आपका, सिंपली आप कंसीडर करिए कि आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट आपकी क्या है, I, और आप मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। तो करंट कैसे मूव करती है,
करंट कैसे मूव करती है, सपोज करिए ये ए है ये बी है, आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की और करंट का मूवमेंट है, तो ये हायर पोटेंशियल हुआ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वी बी माइनस वी है, क्योंकि पाथ इस मूव डायरेक्शन में है, तो ये आपका जस्ट अपोजिट हुआ ना, ये कम है ये ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी निगेटिव आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यदि सपोज करिए कि आप क्या करते हैं, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है बी है, क्लियर है, और ये आपका ऐसे हुआ, ये यहाँ पर आर है और आपकी करंट ये है और आपका पाथ ये है मूव करने का, तो आपने मूवमेंट किया बी टू ए, दैट मीन्स फाइनल पॉइंट आपका ए, इनिशियल पॉइंट आपका बी, दिस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी आई आर। तो इस साइन कन्वेंशन को आपको यूज़ करना है इस थ्योरी में, ठीक है ना, इस लॉ में। अब अप्लाई करेंगे फॉर टू understand this law, we take an example which is shown in figure, क्लियर है ना। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर हमने बात की थी क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज सर्किट कहिए या मैश कहिए, तो यहाँ पर देखिए क्लोज्ड लूप कितने बन रहे हैं, क्लोज सर्किट कितने बन रहे हैं। एक तो क्लोज सर्किट आपका ये बन गया, एक ये बन गया निचला पार्ट, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप इसे एब्सेंट करिए तो ओवरऑल आपका ये भी एक क्लोज्ड लूप बन गया, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि क्लोज्ड पाथ कितने हैं इसके अंदर, वन क्लोज्ड पाथ, सेकंड क्लोज्ड पाथ, और यदि इसे एब्सेंट कर दिया जाए तो ये क्लोज्ड पाथ। तो 3 क्लोज्ड पाथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लोज पाथ के लिए, मैं इसे नाम दूंगा आप जाए यहाँ पर, तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और ये बन गया एफ, इन्हें नाम दे दिया। अब देखते हैं हम कैसे क्लोज पाथ लेंगे। तो हमने लिया ऐसे, हम इसमें सर्किल करके बताएंगे। आपको 2 ही डायरेक्शन में एक सर्किल बनाया जा सकता है, मूवमेंट किया जा सकता है, या तो आप क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे लेना है। मैंने कंसीडर किया ये एंटी क्लॉकवाइज, इसे नाम दे दिया जाता है 1 क्लोज्ड मैश 1। अब एक कंसीडर कर लेता हूँ ये वाला, ये भी इसी डायरेक्शन में ले लिया, ये कर लिया क्लोज्ड मैश 2, और एक ओवरऑल के लिए अप्लाई करेंगे। नाउ इन क्लोज्ड सर्किट बोल दीजिए, क्लोज्ड सर्किट और मैश 1, दैट इज ए। कैसे मूव कर रहे हैं देखिए, ए से मूवमेंट किया हमने, तो हम इसे लिखेंगे ए बी सी एंड देन बी एंड बी टू ए, अप्लाइंग KVL। अब हमें क्या अप्लाई करना है, KVL। अब आप देखिए ऐसे यदि इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा तब देखिए क्या होगा। अभी यहाँ पर आपका एक एलिमेंट R1 है, एक एलिमेंट E1 है, एक एलिमेंट R3 है, तो 3 एलिमेंट्स इस क्लोज मैश 1 में आपके लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले R1 को ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। हम इस डायरेक्शन में चले ना, फ्रॉम B टू A, थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो V तो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मूव किया, तो करंट कैसे चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये आपका क्या हुआ, हायर पोटेंशियल, और ये आपका हो गया लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स हमने बाद में कहाँ पहुँचे, लोअर पोटेंशियल पर, पहले कहाँ थे, हायर पोटेंशियल पे। तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल मीन्स क्या हो जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी मिलेगी ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्या करना होगा, इसे लेना होगा निगेटिव। किसे लेना होगा, निगेटिव। देखिए समझिएगा, -I1 R1, क्लियर है ना।
देखिए आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ देखिए जरा इन पॉइंट्स पर, तो करंट यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब क्या, करंट कहाँ जाती है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये आपका हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो आपका मूवमेंट इसी डायरेक्शन में तो है, तो आपके लिए फाइनल पॉइंट ये होगा इनिशियल, तो फाइनल माइनस ही मतलब लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, दैट विल बी निगेटिव माइनस I1 R1। क्लियर। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, लिखने में, तो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा हम ऑलवेज से ही अप्लाई करेंगे। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में ऑलवेज मैक्सिमम बुक्स में यही लिखा होता है, बट मैं प्रॉब्लम्स में इसे अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन को चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जो इसका कंक्लूजन निकलेगा उसे हम यूज़ करेंगे। ये हो गया। आप चलते हैं सेकंड एलिमेंट पर। सेकंड एलिमेंट में आप देखिएगा कि हमें क्या करना है, ये वाला आया ना आपका, यहाँ पर आपको पहली बात तो ये है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस पॉइंट से आपको कहाँ जाना होगा, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पर जाएंगे तो लोअर टू कहाँ गए, हायर, तो फाइनल हुआ आपका हायर पॉइंट और इनिशियल हुआ आपका लोअर पॉइंट, दैट मीन्स हायर माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा प्लस E1। अब आगे चलिए, अब आए हम इसमें, तो यहाँ पर देखिए करंट आपका इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये हायर है और ये क्या है आपका लोअर है, तो हायर माइनस लोअर होगा। दूसरी बात क्या कि हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट ये हो गया और इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो हायर माइनस इनिशियल दैट विल बी पॉजिटिव, तो ये वाला भी आपका पार्ट पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स I1 प्लस I2 इंटू आपका R3 इक्वल्स टू 0। ये आपका यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखिएगा कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये आपका हायर हो जाएगा, सॉरी रोंग हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। करंट आपका यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया ना, तो ये हायर है और ये क्या है लोअर, और फाइनल ये तो लोअर माइनस क्या होगा हायर, लोअर माइनस हायर होगा, तो दैट विल बी निगेटिव, सॉरी ये आपका निगेटिव होगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट आप इसे लिखिएगा E1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए एक थोड़ा सा काम यहाँ तक हो गया ना आपका, चलिए इसे बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आइए बस में अब चलता हूँ अगेन, अब मैं यहाँ पर इस कंक्लूजन को अप्लाई करूँगा। देखिए अब आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पर सर्किट एनालिसिस में हम इसी की एक डायरेक्शन कंसिडर करेंगे अलजेब्रिक सम के लिए। मैंने बताया था कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वह लोअर पोटेंशियल टू हायर होगी, दैट मीन्स माइनस टू प्लस। क्लियर था ना? और मैंने ऐसे हर बार एरो भी लगाकर आपको दिखाया था ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसे में अब जब एरो लगाऊंगा, अब आपको इस चीज़ को भूल जाना है जो इतनी डिफ़िकल्ट है। अब आपको करना क्या है कि आपको जो चीज़ इस लूप की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लेनी है, और जो इसके जस्ट अपोजिट है वो आपको क्या लेनी है, माइनस लेनी है। बट ध्यान ये रखना है कि आपको ईएमएफ इस डायरेक्शन में और करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस आपको लेना है इस डायरेक्शन में। क्लियर है ना? बात समझ आई ना? मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, अनादर स्टेटमेंट। तो अनादर क्या है? इन अनादर वे, इन अनादर वे जो आपका इसका स्टेटमेंट है। अब क्या है? द अलजेब्रिक सम of the EMFs of all the cells or batteries
इज इक्वल टू इन ए, लिख दीजिए इन ए क्लोज्ड सर्किट और mass is equal to the algebraic sum of the product of the resistances and their corresponding currents in that closed सर्किट। क्लियर है ना? तो अब आप इस अनदर स्टेटमेंट को रिमेंबर कर लीजिए, दैट मीन्स समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आप ये क्लोज मैथ्स लोगे, जो भी डायरेक्शन लोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपको पॉजिटिव लेनी है, अदरवाइज के जो जस्ट अपोजिट होगा वो आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। और जब आप इस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे तो आपको कंक्लूजन यही मिलेगा। ठीक है ना? बस ध्यान ये रखना है, आपको करंट को मेंशन करना है, उसकी डायरेक्शन को, और ईएमएफ की डायरेक्शन को कंसीडर करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर आपको ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई कर देना है। एग्जाम्स में आप ये लिखे दोनों ट्रू है, बट एग्जाम्स में स्टेटमेंट लिखना ये ज़्यादा इजी रहता है, बट अप्लाई करना ये वाला ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है ना? तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड मेष में इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बट ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये कंक्लूजन हमने इसी साइन कन्वेंशन के बेस पर निकाला है। अदरवाइज फिर आपको याद करना होगा कि ऐसा हमने किया तो किया क्यों, ये हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि हम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, पोटेंशियल थ्योरी के बेस पर हम ये सब कुछ यहाँ कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड मेष 2 की। इन मैथ 2 enclosed mass 2 और नाम दीजिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए से, तो नाम क्या होगा, डी ई एफ सी एंड देन डी। अप्लाई कीजिए केवीएल। जब केवीएल अप्लाई करेंगे, देखिए इसे ही अप्लाई करके देखते हैं। आप इसमें देखिए यहाँ पर तो कोई भी सेल नहीं है, छोड़िए, सबसे पहले सेल्स को देखना है इस साइड में। तो यहाँ पर आप ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में और सेल इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स आपका ये हो गया E2 इक्वल्स टू एक ही सेल है। अब आप आइए रेसिस्टेंसेज में, ये R3 है ना, चलिए R3 में करंट कितनी है आपकी, I1 प्लस I2। आप जा इस डायरेक्शन में रहे और करंट इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर I1 प्लस I2 से तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट विद निगेटिव साइन, क्योंकि करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब आइए इसमें, आप मूवमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और करंट आपका इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस के I2 एंड R2। तो निगेटिव साइन खत्म कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट E2 इक्वल्स टू, ये आपका हो गया I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या कर सकते हैं, एक और क्लोज मैच ले सकते हैं, ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप करिए और क्लोज मैच लीजिए। इन क्लोज्ड मैच नाम दीजिए A E F B एंड देन A, और इसे मैं ऐसे करके आपको बता देता हूँ कि ये हमने कर दिया ऐसे थर्ड, ठीक है ना, और 3,
क्लियर है ना। अब आप इसमें अप्लाई करिए। तो सबसे पहले ईएमएफ ले लेते हैं, आप इसे भूल जाइए क्योंकि मैंने इसका इस पाथ को कंसीडर ही नहीं किया है। तो सबसे पहले E1 बैटरी इसी डायरेक्शन में है, तो E1 आपका हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा जस्ट अपोजिट है तो माइनस E2 इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पर R1, इसमें करंट इसी डायरेक्शन में है, प्लस I1 इंटू R1। अब चलिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट है तो माइनस I2 R2। तो ये आपका बन गया थर्ड। तो 3 इक्वेशंस यहाँ किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से फॉर्म हो सकती है और इन्हें सोल्व करके आप I1 I2 E1 E2 R1 R2 को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एनी 2 अननोन्स। देखिए यहाँ पर अब जा क्या होगा, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये वाली, इसे स्किप करके हमने ये थर्ड कंसीडर की। तो आप ये देखिए, यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। देखिए चेक करिए, E1 माइनस E2 करिए, E1 माइनस E2 देन I1 R1 ये रहा, माइनस I2 R2 और ये वाला कॉमन पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ये थर्ड पार्ट भी आपका ट्रू है यदि आप इसे इस बीच में से स्किप कर देते हैं कॉमन पार्ट को। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। तो और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। तो आप इसे रिमेंबर करिएगा, याद नहीं तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्लियरली कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सिंस सिग्मा V इक्वल्स टू 0 implies that sigma V is nothing but W by Q equals to 0 implies that sigma W equals to 0, that is net work done will be 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितना भी आपको काम कर बैटरी आपका वर्क कर रही है वो आपको रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका कंजर्वेशन लॉज को क्या करता है, एनर्जी के फॉलो करता है। दैट इज द KVL is based on conservation law of energy. Remember this point, it is very very important. Okay, so complete this topic in your notebook and try to solve some problems based on this circuit Kirchhoff's law first and second, and if you have any doubt then please ask to solve your doubts, to clear your doubts. We will take your online class on Zoom app also in after 1 and 2 days. Okay, thank you for watching this video.